السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لبائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
वफ़ीहि जमअन मिन शियअतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमतु व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू। फ़क़ाल अलीयुन अलैहिस्सलाम इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व फ़ाज़ शियअतुना व रब्बिल कअबा। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सानियन या अली वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्या मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलि अहलिल अर्ज़ वफ़ीहि जमअन मिन शियअतिना व मुहिब्बीना वफ़ीहिम महमूमुन इल्ला वफ़र्रजल्लाहु हम्मा वला मग़मूमुन इल्ला वकशफ़ल्लाहु गम्मा वला तालिबु हाजतिन इल्ला वक़ज़ल्लाहु हाजतह। फ़क़ाल अलीयुन अलैहिस्सलाम इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिक शियअतुना फ़ाज़ू व सुइदू फ़िद दुनिया वल आखिरति व रब्बिल कअबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मनकुश ख़द पर मेरे नामे हैदर मनकुश ख़द पर मेरे नामे हैदर अल्लाह के घर में है क़यामे हैदर अल्लाह के घर में है क़यामे हैदर। बाक़िर मुझे क्यों अरसाए महशर का ख़ौफ़ बाक़िर मुझे क्यों अरसाए महशर का ख़ौफ़ मैं रोज़े अज़ल से हूँ ग़ुलामे हैदर मैं रोज़े अज़ल से हूँ ग़ुलामे हैदर मनकुश ख़द पर मेरे ज़ख्मी हुए जो गैदरे सफ़दर नमाज में शमशीर ज़ुल्म चल गई सर पर नमाज में गुलगू हुई जबीने मुनव्वर नमाज में सर ता कदम लहू से हुए तर नमाज में सदमा हुआ ये सुन के सगीरो कबीर को
जख्मी किया नमाज में कुल के अमीर को लो मोमिनो इमाम की रहलत करीब है हंगामे हश्र वक्ते क़यामत करीब है आका की गम गुलामों से रुखसत करीब है बाग़ जहाँ बैद है जन्नत करीब है सदमे से जिन्नो इंसान मलक जान खोएंगे सदमे से जिन्नो इंसान मलक जान खोएंगे आका हमारे मर गए ये कह के रोएंगे जख्मी हुए जो गैदर है बंदा हजार साल इबादत अगर करे बंदा हजार साल इबादत अगर करे और ज़र बक़द्र को गद राह हक में दे हज भी पाया दपा जो हजार स्नेहों किए और बेगुनाह कत्ल हो वो जुल्म जार से हुब्बे अली की मैनगी गर दिल के जाम में हुब्बे अली की मैनगी गर दिल के जाम में जन्नत की बू न पहुँचेगी हरगिज़ मशाम में बंदा हजार साल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना अबिल क़ासिम मुहम्मद
वक़ला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लानतु दाइमतु अला क़दाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हमीद व फ़ुरक़ानिहिल मजीद क़ौलुहुल हक़्क़ु व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुलिल हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। तमाम तारीफ़ें उस अज़ीम परवरदिगार के लिए जिसे अली इब्न अबी तालिब ने सजदे किया, और तमाम हदिये दुरूद व सलाम व नज़वात मुक़द्दसात के लिए जो बाइस खिलक़त कायनात भी और अशरफ़ मौजूदात भी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआनिल अज़ीम व जअलना वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बेमुसाबिना बिअमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम व जअलना व इय्याकुम इंशाअल्लाहु मिनत तालिबीन बिसअरिही मअ इब्निही अल इमाम अल महदी मिन आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीरुल मोमिनीन के बेहतरीन कलिमात से और इन जुमलात के साथ कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रोज़े शहादत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़त्म ये मरतबत की बारगाह मुक़द्दस में, खानवाद अहले बैत की बारगाह मुत्तहर में, तमाम अहले इल्म उलमा मराजे उज़्ज़ाम की खिदमत में, अहले ईमान की खिदमत में मौला के रोज़े शहादत की ताज़ियत बजा लाता हूँ। यकीनन रोज़े शहादत रोज़े मुसीबत है, रोज़े सोग है, और जितना भी इंसान मातम कर सके मौला की याद में, अपने घर में, अपने इलाक़े में, जहाँ जहाँ उसके लिए वसाइल दस्तयाब हों इमाम की याद के हवाले से, तमाम तर तदाबीर एहतियात के इस्तेमाल के साथ अपने अपने इलाक़े में रहते हुए, खुदा करे वो दिन नसीब हो जब हम जाएं मौलाए कायनात के रोज़े पर और मौला की शहादत और मौला की ताबूत की शबी को पुरसा पेश करें मौला के हरम के अंदर। यकीनन रोज़े शहादत के एतबार से गर्चे फ़ज़ाइल का उन्वान तो नहीं है, लेकिन अपने उन्वान को मुकम्मल करने के लिए आपकी खिदमत में शरह ज़ियारत अमीनुल्लाह का उन्वान और आज उस सिलसिले की आखिरी गुफ्तगू। जैसे कि रोज़ाना आपकी खिदमत में बात बयान हो रही है कि ये ज़ियारत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस से तालीम दी गई। और फिर यह बात याद दिला दूँ कि मौलाए मुत्तक़ियान के रोज़े की तारीख़ पुरानी, उससे पुरानी तारीख़ ज़ियारत अमीनुल्लाह की है। यानी क्या मतलब? रोज़ा ना कि कब्र मुक़द्दस। मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कब्र मुक़द्दस की तारीख़ क्या है? आज ज़ियारत अमीनुल्लाह के कलिमात पर जाने से पहले दो जुमले आपकी खिदमत में तमहीद की मंजिल पर। मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयतों में से कुछ वसीयतें ऐसी हैं जो आपके गुस्ल कफ़न से मुताल्लिक़ हैं, आपके जनाजे और कब्र से मुताल्लिक़ हैं। उनमें से एक वसीयत है, फरमाते हैं अपने बेटों से कि ए मेरे बेटो हसन और हुसैन,
व इज़ा मित्तु, जब मैं दुनिया से गुजर जाऊं, तुम मेरे जनाजे को तैयार करना। और देखो, जनाजे को उठाना पीछे की तरफ से, पांतीन की तरफ से, सिरहाने से जनाजा खुद ब खुद उठेगा। और जानिबे पुश्ते कूफा लेकर जाना। ये बात याद दिला दूं कि नजफ की तारीख से कदीम तारीख है कूफे की। और जितने नाम नजफ के लिए तारीख ने बयान किए उनमें से एक है ज़हर कूफा भी। ज़हर कहते हैं पुश्त को, पुश्ते कूफा। इमाम फरमाते मेरे जनाजे को जानिबे पुश्ते कूफा, आज के ज़माने के लिहाज से नजफ की तरफ लेके जाना। और जब तुम पुश्ते कूफा की तरफ चलोगे तो एक मकाम ऐसा आएगा मेरे बेटो कि ये जनाजा मेरा आगे की तरफ से, सिरहाने की तरफ से झुकने लगेगा। और जब जनाजा झुकने लगे तो तुम जनाजे को वहां जमीन पर उतार लेना। मट्टी और रेत को हटाओगे तो अंदर से कब्र तैयार निकलेगी कि जो मेरे भाई जनाबे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तूफान नूह से पहले तैयार की थी। अब यहां पर कब्र की तैयारी की तारीख अलग बन गई। कब्र कब बनी है? तूफान नूह से पहले। और कब्र बनने के बाद बनाई किसने? जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने। क्या मौला की शान है, जिस घर में विलादत हो उसे काबा कहें और उसे दो अंबिया मिलके बनाएं, और जहां दफन हो उससे एक नबी हाथों से तैयार करें। अल्लाह अकबर। तो महद और लहद इतनी मुबारक है कि महद को काबा कहते हैं, लहद को नजफ कहते हैं। महद के मेमार को इब्राहिम कहते हैं, लहद के मेमार को नूह कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। शेखुल अंबिया जनाब नूह अलैहिस्सलाम, साहिब शरीयत पैगंबर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उसके बाद भी लोग इमाम के फजाइल को कबूल करने से क्यों परेशान होते? मैं सिर्फ कब्र की बात कर रहा था। और चलिए, जब कब्र की बात यहां तक आई तो एक बात तो वाज़ेह हुई कि पहले से कब्र खोदी जा सकती है। अब ये बात किसी हद तक बड़ी परेशान कौन थी उस ज़माने में, जबकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ख़ास तौर से शहर कराची में हालात तशय्यो के लिए बड़े खौफनाक रहे थे। टारगेट किलिंग अहले ईमान की हो रही थी। ऐसे में बाज़ लोग कहते थे कि शायद ये जो वादी हुसैन कब्रिस्तान जब से बना है, उनका ख्याल ये था। तो कब्रें पहले से खोद के तैयार कर दी जाती हैं और ये कब्रें मुर्दा मांगती हैं। खुदा के लिए अहले ईमान भी आप, अहले इल्म भी आप, मौला के चाहने वाले भी आप, तो किसी ऐसे के लिए जिसका ताल्लुक़ बाबे मदीनतुल इल्म से हो, इस तरह की खुराफात को अकीदा बनाना सही नहीं। अगर कब्र खोदी जाने के बाद कब्र मुर्दा मांग रही होती तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम तो मौलाए कायनात की कब्र बना चुके तूफान से पहले। तो फिर आपके ख्याल में तो मौला को दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। दूसरी मिसाल कब्र के हवाले से, ये कब्र इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कब्र के क्या मामलात थे वो आपके इल्म में। तीसरी मिसाल इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र, तो कब्र का पहले खोद लिया जाना। जनाब नफीसा खातून अपने हाथों से अपने घर में अपनी कब्र खोद रखी थी और उस कब्र में बैठकर 6000 कुरान पढ़े थे। तो 6000 कुरान जिंदा थी तो पढ़े थे ना। तो घर में कब्र
इसका मतलब कब्रिस्तान से घर आने में या कब्र की मिट्टी घर पे आने में कोई क़यामत नहीं होती। नफीसा खातून, और कसम ब खुदा किसी और की बात करें ना करें, मगर हम तो ऐसे दीवाने हैं मौलाओं कि मौला की कब्र की मिट्टी तबर्रुक के तौर पे घर पे लेकर आते। तो सारे कब्रिस्तान की मिट्टी घर पे लाएं कि ना लाएं, मगर करबला मुअल्ला की तुरबत सरकार सैयदुश्शुहदा की खाक घर पे ले आते। तो बात हो रही है कि किसने बनाई? जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने। कब बनाई? तूफान नूह से पहले। कहां बनाई? पुश्ते कूफा में। अब पहला मसला मुकम्मल हुआ। दूसरा मसला, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र कितना अरसे तक पोशीदा रही। मैंने कल भी जुमला कहा था, आज भी जुमला कहा मैंने कि रोज़े की तारीख से ज़्यादा कदीम ज़ियारत अमीनुल्लाह की तारीख। यानी क्या मतलब? जब चौथे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ रहे थे या तालीम दे रहे थे, उस वक्त मौलाए कायनात का रोज़ा मौजूद नहीं था। ना रोज़ा, ना हुजरा, ना संदूक कब्र मौजूद नहीं थी। अब ये अहले इल्म तो उससे बेहतर जानते तारीख पढ़ने वाले, मैं तो अपने नौजवान दोस्तों के लिए मौला के शहादत के अय्याम की मुनासिबत से पढ़ रहा हूं। गौर कीजिएगा कि कब आश्कार हुई। मासूमीन के अतवार मुक़द्दस के लिहाज से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद नजफ, कूफा और करबला, और बादशाहान के दौर की तारीख के एतबार से हारून रशीद मलूक शिकार करने के लिए शिकारी कुत्तों के जरिए हिरन का शिकार, और पुश्ते कूफा पर हिरन पाए जाते थे उस जमाने में। तो ये शिकारी कुत्तों को लिए हुए कूफे से शिकार करता हुआ गरी के इलाके में पहुंच गया। गरी भी कहते हैं नजफ को, इसी से वो आप सुनते हैं अल-गरवी, गरी माने नजफी। ये पहुंच गया। अजीब देखा मतलब इसने कि शिकारी कुत्ते हिरन के पीछे दौड़ रहे और हिरनों का गौल एक बुलंद टीले पर पहुंचकर रुक जाता है और कुत्ते उनको देखकर नीचे रुक जाते हैं। और जैसे ही वो हिरन उस टीले से, उस बुलंदी अर्ज से नीचे उतरते हैं तो शिकारी कुत्ते उन पर लपकते और हिरन घबरा के वापस ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, ये एक आध दफ़ा हुआ तो शायद इतना नोट ना किया जाए, लेकिन इतनी बार हुआ कि हारून जैसा तकब्बुर में डूबा हुआ इंसान भी मुताजिब हो गया कि मसला क्या है। यानी कुत्तों को क्या तहजीब है कि इस पहाड़ी की बुलंदी पर या इस टीले पर जाना है कि नहीं जाना। उनका काम तो शिकार के पीछे जाना है, शिकार ऊपर गया तो ऊपर चले जाएंगे। बहुत गौर कीजिएगा। इसने वहाँ जो अतराफ में आबादी गांव और देहात की थी उनमें दौड़ाया अपने कासिदीन को, बुलाओ किसी जानने वाले को कि मसला क्या है, ये बुलंदी जो टीले की इस पर क्या है, ऐसी ख़ास बात क्या है। कुछ तो है जो पनागाह बनी हुई है हिरणों के लिए और कुत्ते वहाँ हमला नहीं कर पा रहे। जैसे ही बुलवाया गया तो बहुत बूढ़े शख्स ने कहा, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। क्या तुम्हें हम जान की अमान देते हैं, बयान करो। कहने लगा, मुझसे मेरे बाबा ने, उससे उसके बाबा ने सीना ब सीना एक खबर सुनाई है कि ये जो बुलंदी है टीले की शक्ल में, यहाँ कब्र वसी है,
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक यहाँ पर है। कहते हैं उसके बाद से उसने बनवाया, हुजरा तामीर करवाया, संदूक बनवाया। गोया पहली मर्तबा जो शक्ल इमारत वाक़ई हुई मौला के रोज़े की, उस ज़माने की बात है। उसके बाद नादिर शाह ने इस पर मज़ीद सोने के तमाम तर लगवाई, प्लेट्स लगवाई, इससे काम करवाया, सोने की मीनाकारी करवाई गई इसके ऊपर। तो रोज़े की तारीख़ बाद में है और ज़ियारत आमीनुल्लाह की तारीख़ पहले है। नजफ़ जाने वाले ज़ायरीन की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, जो गए हैं और जो इंशाअल्लाह जाएंगे सब जाएंगे, वरना फिर वो आशिक तो कहेगा डूब कर इश्क़ की कैफियत में, ना जाने देगी नजफ़ शूम ये किस्मत, मिलेंगे कब्र में मौला सलाम कर लेंगे, वो अलग मौजू है। लेकिन क्या कहने, मिर्ज़ा दबीर का मौजू अलग है। वो कहते हैं कि मशरिक़ में करो दफन या मगरिब में उसे, मलंग कह रहा था न जाने देगी नजफ़ शूम ये किस्मत, मिलेंगे कब्र में मौला सलाम कर लेंगे। मलंग कहता है कि मौला मेरी कब्र में आएंगे, और मिर्ज़ा कहते हैं कि मशरिक़ में करो दफन या मगरिब में उसे, जो आशिक़ हैदर है नजफ़ में होगा। फ़र्क वाज़ेह हुआ। ये दोनों अशआर की ज़ुबान ने अपना अपना अंदाज़े मोहब्बत पेश कर रहे हैं। एक कहता है मौला मेरी कब्र में आएंगे, एक कहता है मुझे मौला के जवार में उठा के ले जाया जाएगा। मशरिक़ में करो दफन या मगरिब में उसे, जो आशिक़ हैदर है नजफ़ में होगा। तो नजफ़ मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के रोज़े की तारीख़ चूँकि ज़ियारत अमीनुल्लाह के ज़ेल में आई है, इसलिए मैं पूरी तारीख़ नजफ़ बयान नहीं कर रहा, और ना इसका वक्त है, ना मेरा उन्वान है। ज़ियारत अमीनुल्लाह के लिए ये बयान करना लाजिम था मेरे लिए कि चौथे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहुँचे नजफ़, जबकि नजफ़ के नाम से मारूफ नहीं था। और अगर अहले इल्म को एक मिसाल दूं तो शायद और करीब हो जाए मेरी बात से। गौर कीजिएगा, 4 साल की बच्ची है और जलते हुए खैमे से बाहर आई है, और शिद्दत मसाइब ये कि बच्ची के रुखसार पर तमाचों के निशान हैं और कानों से लहू टपकता है, और गुर्बत ये कि दामन में भी आग लगी हुई है। लश्कर यजीद का मौर्रिख हमीद कहिए या हुमैद कहिए, इब्ने मुस्लिम, उसने बच्ची को आता हुआ देखा मैदान की तरफ, तो महसूस किया कि हवा जहां चल रही है तो आग भड़कती है, तो कहीं बच्ची को नुकसान न पहुंच जाए आग के लगने से। ये कहता मैं आगे बढ़ा बच्ची की आग बुझाने के लिए। बच्ची ने मुझे तन्हाई में करीब आते हुए देखा तो चिल्लाकर कहा, शेख मेरे करीब मत आना, मैं औलाद फातिमा ज़हरा। तब ये शेख कहता है, बच्ची मैं किसी इरादे से नहीं आता हूं, मैं तो तेरे दामन की आग बुझाना चाहता हूं। क्या कमाल है, उसके बाद भी बच्ची ने आने की इजाज़त नहीं दी। बच्ची कहती अगर तुम मेरे साथ एहसान करना चाहते हो, एक एहसान कर दो, मुझे नजफ़ का रास्ता बता दो। रावी मौर्रिख, तारीख़ लिखने वाला लश्कर यजीद की, कहता है बच्ची नजफ़ जाके तू क्या करेगी? क्या तुझे नहीं मालूम? अल्लाह अकबर, मेरा दादा अली ये मुर्तज़ा नजफ़ में रहता है। अगर उस ज़माने के तारीख़दानों को इल्म होता तो यजीद का मौर्रिख जानता होता ना कि नजफ़ में मज़ार अली इब्न अबी तालिब या कब्र अली इब्न अबी तालिब है। ये 60 साल का नहीं जानता, वो 4 साल की जानती है। वो खानवादे अहले बैत की बच्ची है, कहती है नजफ़ में मेरा दादा रहता है। अल्लाह अकबर। तो शायद अब की बात
अजहान में करीब हो चुकी होगी कि ज़ियारत आमीनुल्लाह की जो तारीख़ है वो मौला के रोज़े से कदीम है। नजफ़ में जाने वालों के लिए एक मिसाल बयान कर रहा था, जाइए खुदा नसीब करे। और जाने वालों में कुछ ऐसे भी गए कि जिन्होंने शायद तवज्जो न की हो, क्योंकि आम तौर पर काफ़िले वहाँ तक ज़ायरीन की रहनुमाई नहीं कर पाते, इतना कम वक्त रहता है। उनमें एक मकाम इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नजफ़ की ज़ियारत में सहन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की तरफ खुश्क समंदर के किनारे और साहिल पर 2 मज़ारात बने हुए हैं, 2 ज़ियारतगाहें बनी हैं। एक ज़ियारत अमीनुल्लाह की यादगार के तौर पर जहाँ चौथे इमाम ने आकर सलाम किया, और दूसरी उस शख्स की कब्र है जिसको मौलाए कायनात ने अपने हाथों से दफन किया था। साफ़ी सफ़ा यमानी, मशहूर लफ्ज़ साफ़ी सफ़ा यमानी, साहिब अमीरुल मोमिनीन। बस मैं एक जुमला यहाँ कहूँगा, इसके बारे में फिर बात को आगे बढ़ाएंगे और आज की हद तक बात मुकम्मल करेंगे। ये कौन है? ये वो शख्स है कि जिसका जनाजा उसके बेटे यमन से लेकर आए थे, और मौलाए कायनात कूफे से अपने असहाब के साथ चहलकदमी करते हुए खुश्क समंदर के किनारे तक पहुँचे थे। और वहाँ पहुँच के आपने फरमाया था कि वो दूर से तुम्हें धूल मट्टी उठती हुई दिख रही है, अनकरीब एक जनाजे को ऊंट पर रख कर लाया जाएगा और यहाँ दफन किया जाएगा। जैसे इमाम ने फरमाया था वैसे ही हुआ। और जब जनाजे को लेकर लोग पहुँचे, और अब ये बात फिर याद दिला दूँ कि वादी सलाम में जो मैयतें आती हैं, आमतौर पर मैयतों में सिर्फ वही लोग आते हैं जो बहुत करीबी होते हैं, 2, 4, 8, 10 लोग होते हैं बस। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस मैयत के लाने वालों से सवाल जवाब किए थे, किसको लेकर आए हो? क्या हमारे बाप की मैयत है? कहाँ से लाए हो? यमन से लेकर आए। क्यों लेकर आए हो यहाँ पर? यमन से यहाँ तक का बाबा की वसीयत थी कि मुझे दफन करना उस मकाम पर कि जो पुश्ते कूफा है। क्या तुमने बाबा से पूछा नहीं कि बाबा इतनी दूर दफन होने की आरज़ू क्यों कर रहे हैं? क्या पूछा था? क्या फिर बाबा ने क्या कहा? क्या बाबा ने कहा कि वहां पर करीब एक ऐसे शख्स को दफन किया जाएगा जिसकी बरकत से खुदा 70,000 अफराद को बगैर हिसाब के दाखिले जन्नत करेगा, जो उसके जवार में दफन होंगे, या खुदा उसकी बरकत से कबीले बनी कल्ब की भेड़ बकरियों के जिस्मों पर जितने बाल हैं उनकी तादाद में खुदा उस साहिब कब्र की वजह से लोगों को मग़फ़िरत नसीब फरमाएगा। 2 तरीक़े से ये वाक़या पढ़ा जाता है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम जानते हो शख्स कौन है जो यहाँ दफन होगा? हम नहीं जानते। अपने असहाब के सामने इमाम ने अपने सीने पर हाथ रख के फरमाया, वल्लाहि हाजा अना, कसम है परवरदिगार की वो शख्स मैं हूं। वह मौलाए कायनात की शहादत से पहले और कब्र मौलाए कायनात से पहले मौला के जवार में दफन होने का रिवाज चला आ रहा था। और ज़ियारत अमीनुल्लाह मौलाए कायनात के रोज़े की तामीर से पहले चौथे इमाम ने नजफ़ में उस मकाम पे खड़े होकर पढ़ी। अब करीब नहीं गए। क्यों करीब नहीं गए? ये हालात पे, वहाँ के ख़ास हालात पे कब्र पोशीदा क्यों है? खारजियों के
इंतकाम के हवाले से, खारजियों की साजिशों के एतबार से कब्र मौलाई मुत्तकियान काफ़ी तवील अरसे तक पर्दे राज में रही है। बस जैसे छठे इमाम के दौर में मौलाए कायनात के रोज़े का आश्कार होना, वैसे इमाम ज़माना के दौर में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के रोज़े का आश्कार होना। ये तो बात थी ज़ारत अमीनुल्लाह की तारीख़ के हवाले से, जो रोज़ाना आपकी खिदमत में कुछ जुमले में अर्ज़ करता हुआ चला आया और आज भी ज़ियारत के सवाब को हासिल करने। इस ज़ियारत में 4 हिस्से। पहला हिस्सा सलाम का है। अस्सलामु अलैका या अमीनल्लाह फ़ी अर्ज़े व हुज्जतहु अला इबादिह। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। बहुत गौर कीजिएगा, सलाम हो आप पर ए मोमिनों के अमीर। अब इस जुमले को, वैसे तो बहुत मशहूर जुमला है, और इस जुमले की वजाहत के लिए लफ्ज़ अमीर पे पहले गौर कर लेते। अमीर क्या है, इमारत क्या है, और इसके माना किस अंदाज से किए गए। एक माना तो आपकी खिदमत में बहुत वाज़ेह कि मोमिनों का सरदार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक माना और, जिसे ज़ियारत अमीनुल्लाह की शरह लिखने वाले बाज़ साहिबान इल्म ने इशारा किया है इसकी तरफ। सूरह मुबारक यूसुफ की आयत नंबर 65 में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, लफ्ज़ नुमीरुहुम। लफ्ज़ नुमीरो, मारा युमीरो नुमीरो। अमीर के उन्वान में एक लफ्ज़ और सामने आया, नुमीरो। नुमीर कहते हैं, नुमीर कहते हैं कि इंसान के खाने का इंतज़ाम कर देना। जो ग़िज़ा का इंतज़ाम करे उसे कहते हैं अमीर। जिस्मानी ग़िज़ा खिलाए वो जिस्मानी अमीर है, जो रूहानी ग़िज़ा खिलाए वो रूहानी अमीर है। और खुदा का बड़ा एहसान है कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वसीले रिज़्क़ मादी भी हैं, वसीले रिज़्क़ मानवी भी हैं। बेहतरीन जुमला है। आइए आपकी खिदमत में ये आयत का हवाला सूरह यूसुफ आयत नंबर 65। इसमें जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा था बाबा से कि हम जा रहे हैं तो साल भर के खुराक का, खाने का इंतज़ाम भी करेंगे, जाके उससे बात करेंगे। और इस जुमले को यहाँ इस्तेमाल किया चौथे इमाम ने ज़ारत अमीनुल्लाह के अंदर, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। तो जब कभी अहले ईमान मौला को सलाम करें तो रूहानी ग़िज़ा तलब करें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। रूहानी ग़िज़ा, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद की तवानाई मांगे अली से, अपने गुनाहों की आदत पे कंट्रोल मांगे अली से। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहु अकबर। तो बात हमारी यहां तक थी कि लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन को समझाने के लिए एक मसला रोटी खिलाने का, तो मौला वसीले रिस्क, मादी रिस्क के एतबार से भी। कभी गौर कीजिएगा कि जहां पर एक वाक़या मिलता है कि एक मरतबा मेरा मौला किसी काम से बाज़ार कूफा की तरफ निकल रहे थे कि रास्ते में आपने राह गुज़र में एक अंसारी को अपनी खुराक खराबे से तलाश करते हुए देखा। जहाँ लोग कचरा डाल देते हैं वहाँ से वो अपनी खुराक तलाश कर रहा। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे को पोशीदा फरमाया और आगे जाने के बजाय वापस घर में आ गए। और वापस घर में आने के बाद कंबर को रवाना, कंबर जाओ जाकर उस अंसारी को मेरे पास लेकर आओ। जब कंबर उसको लेकर इमाम की खिदमत में आए तो इमाम ने अपने करीब बिठाया
गौर कीजिएगा बहुत। इमाम अलैहिस्सलाम को दस्तरखान बहुत वसी था, बहुत उम्दा तरीन नेमतें, मगर इमाम की सादा तबीयत के एतबार से थी। इमाम सबको रोटी खिलाते थे, मेहमानों को, मगर किसी को अपनी सूखी रोटी में से रोटी नहीं खिलाते थे। इसलिए नहीं या खुदा न खास्ता मौला ये करम ना करना चाहते हो, इसलिए कि वो सूखी रोटी कोई और खा नहीं सकता था। बगैर छिलका निकाले हुए, आपकी ज़ुबान के एतबार से बगैर भूसी अलग किए हुए आटे की, वो छिलके वाली जौ का कुछ पिसा हुआ आटा, कुछ छिलका, उसकी बनी हुई रोटी मेरा मौला इस तरह से नोश फरमाते थे कि पानी में भिगोते थे और उससे पहले उसके लुक़्मे बनाने के लिए उसे आप अपने जानू और घुटने की मदद से तोड़ते थे। तो भला किसी और को इमाम कैसे खिलाते हो? लेकिन तारीख में यह अजीब वाक़या मिला कि इस आने वाले अंसारी को इमाम ने अपने करीब बिठाया और अपनी सूखी रोटी अपने जानू और घुटने की मदद से तोड़ी और अपने दस्ते इमामत से पानी के अंदर भिगोई और इस अंसारी को लुक़मा बना के इसके मुंह में दिया। जैसे ही उसने लुक़मा मुंह में रखा, हैरत से उसकी आंखें फैल गईं, इतना ताज्जुब हुआ कि चेहरे पर नुमायां हो गया। इमाम ने सवाल किया कि ए ब्रादर अंसारी, क्या बात है, ताज्जुब किस बात पर हो गया? अंसारी कहता है कि मैं यकीन भी नहीं कर सकता और इनकार भी मुमकिन नहीं है कि मैंने अपनी आंखों से देखा आपने सूखी रोटी को पानी के अंदर भिगोया था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपने उसका लुक़मा मेरे दहन में रखा था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपने उस लुक़मे को उठाकर मेरे दहन तक पहुंचाया। लेकिन यह अजीब बात हुई या अमीरुल मोमिनीन कि जैसे ही आपने मेरे दहन में लुक़मा रखा, वो लुक़मा गोश्त के जायके में, गोश्त के लुक़मे में तब्दील हो गया। अल्लाहु अकबर। अंसारी कहता है कि मौलाए कायनात ने उस एक सूखी रोटी से मुझे तमाम नेमतें परवरदिगार अता फरमा दी। यानी क्या बात करते हैं फलों की, क्या बात करते हैं सब्जियों की, क्या बात करते हैं गोश्त के बने हुए खानों की। जिनका मौसम था वो भी खिला दिए, जिनका मौसम नहीं था वो तमाम फल भी खिला दिए। एक सूखी रोटी से इमाम ने तमाम तर जायके अता कर दी। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, मौला वसीले रिस्क हैं, मादी रिस्क के एतबार से, लफ्ज़ नुमीरो से अमीरो। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। और रिस्क मानवी यानी कि वो रिस्क कि जो इंसान को खुदा की तरफ से उस वक्त मिलता है जबकि इंसान उसके लिए खुद खुदा की बारगाह में सवाल कर रहा हो। कभी गौर कीजिएगा कितनी बार अहले इस्लाम ने, अहले ईमान ने इस दुआ को पढ़ा, कुरान मजीद की आयत को, रब्बना आतिना फिद दुनिया, क्या पढ़ा, हसना, व फिल आखिरते हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये आयत कुरान शक्ल दुआ में। कभी गौर किया कि आप क्या मांग रहे हैं? आप क्या मांग रहे हैं? कभी गौर किया? आप मांग रहे हैं मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। हसना क्या है? हुब्बु अलीयिन हसनतुन, अली की मोहब्बत है हसना। नेकी क्या है? अली की मोहब्बत यानी हसनतुन। और ऐसी मोहब्बत जो गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग खुश्क लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है।
अपनी हर इबादत में दुआ मांग रहे हो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए खुदा हमें दुनिया में भी मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब अता फरमा, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब अता फरमा, वक़िना अज़ाब अन्नार, जब मोहब्बत अली मिल जाए तो हमें आतिश जहन्नुम से बचा दे। कोई ताल्लुक़ है कि जिसको मोहब्बत अली आखिरत में मिल गई वो जहन्नुम के अजाब से बच गया। आइए गौर कीजिए, सरकार ख़त्म किया मरतबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर इंसान लविश्तम अन्नास अला हुब्बे अली इब्न अबी तालिब, अगर सारे इंसान इज्तिमा कर लेते अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत पर, लमा खलक़ल्लाहु अन्नार, अल्लाह आतिश जहन्नुम को पैदा ही ना करता। आतिश जहन्नुम पैदा हुई है इसलिए कि लोग जमा नहीं हो सके मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब पर। मौला की मोहब्बत इंसान को कितना बुलंद करती है और क्या कुछ अता हो जाता है, रिज़्क़ मादी भी, रिज़्क़ मानवी भी। रिज़्क़ मानवी की मिसाल आपकी खिदमत में, और फिर आपको लिए चलता हूं फिर शहर कूफा के अंदर। शहर कूफा में मस्जिद कूफा और मस्जिद कूफा के बाब सोबान के मुकाबिल दरमियान सड़क के साथ फुटपाथ पे बना हुआ एक रोज़ा, खतीजा बिनते अमीरुल मोमिनीन का रोज़ा। कहते हैं तकरीबन यहाँ वो दुकान थी मीसम तम्मार की, जहाँ मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर बैठ जाते थे। मीसम की दुकान का महल वक़ू आपने समझ लिया। मीसम का मज़ार कहाँ पर है? इस पूरे इलाक़े ज़ारत में बैतुल शरफ से निकल के पूरा कारवाने ज़ायरीन जब आगे बढ़ता है तो पूरे पार्किंग और ग्राउंड से होते हुए आगे बढ़कर मीसम के रोज़े पर पहुंच जाते हैं। मीसम अबू सालिम, पहले आपका नाम सालिम था, फिर अल्लाह के हबीब के अल्फाज के लिहाज से नाम रखा गया मीसम, और सालिम की बजाय अबू सालिम कुनियत करार दी गई। याहिया तम्मार का बेटा मीसम, और मीसम ने रिज़्क़ मानवी हासिल किया। बहुत गौर कीजिएगा कि जहां पर मौला उनकी दुकान पे आगे बढ़ जाते, मीसम की दुकान, बहुत मशहूर वाक़या। सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं कि अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, जब इंसान को रिज़्क़ मादी का मसला हो तब भी कहे, जब रिज़्क़ मानवी का मसला हो तब भी मौला से कहे अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। मीसम के पास मौला के बैठ जाते हैं और दुकान पे बैठ जाते हैं। मीसम मौला को बिठा के एक दिन चले गए तो काम पड़ गया था। बहुत बड़ी बात है, कभी गौर कीजिएगा। इस तरह से दोस्ती और इश्क हो जाए कि अपनी दुकान पर कोई अपने मौला को अकेला छोड़ के अपने किसी काम से चला जाए। मैं हैरान हूं, शुअरा को क्या हो गया? नुसैर को याद करते हो, मीसम को याद नहीं करते हो। नुसैर वो जिसे इमाम ने इतनी तलवार से मारा, मीसम जिसको इमाम ने सीने से लगाया, ये मीसम। चले गए। मीसम की दुकान कोई बहुत बड़ी नहीं थी, दो काम करते थे। बाज़ ने लिखा कि आप खजूर बेचते थे और साथ में कभी कभार जब मौसम आता था बतीख का, यानी खरबूजों का, कोई बेचते थे। तो मौसम था इस वक्त खजूरों का। चले गए, वापस आए, देखा सारे टोकरे खाली हैं। कौन सी बड़ी शॉप होगी, कौन से डिज़ाइन के बने होंगे शोकेस वगैरह, नॉर्मल सी दुकान थी, टोकरे रख दी और लाके बेच रहे हैं। आए, देखा सब खाली है। इमाम से कहने लगे, मौला क्या कोई गाहक आ गया था? इमाम ने बड़ी शाने बेनियाजी के साथ फरमाया, बहुत गौर कीजिएगा, ऐसा अली किसको बर्दाश्त होगा आप में से, हम में से? वैसे मीसम ही थे जो बर्दाश्त करते थे मौला को। अल्लाह अकबर। क्या मतलब
कि दुकान मीसम की, माल मीसम का, और लुटा दिया मौला अली ने आके। आप तो उस अली को चाहते हैं जो आप पर अपना माल लुटा दे। वो अली पसंद है जो आपके माल को अपने हाथ से लुटा दे। अरे यहां तो माली वाजिबात अदा करते हुए जान निकलती है। इंसान फितरा भी निकालता है तो पूछ पूछ के कितने किलो है, कहीं ज्यादा न निकल जाए। अगर हो मसला खुम्स का तो पूछता है और रास्ता निकाले मौलवी साहब ये कुछ खुम्स कम हो जाए। तो मैं समझता हूं कि इंसान अजीब हो जाता है जब खुदा के नाम पे देता है तो बखील हो जाता है, जब खुदा से लेता है तो सखी हो जाता है, झोली फैला के मांगता है, वो भी दे दे, वो भी दे दे, वो भी दे दे। खैर, अपने आप को रोकता हूं वरना बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। मीसम और रिश्ते मानवी। मीसम पलट के वापिस आए और इमाम से पूछा। इमाम ने फरमाया मुस्कुरा के, मीसम साइल आया था, उसने मांगा, हमने दे दिया। ज़कात नहीं दी है, खुमुस नहीं दिया है, दुकान का सारा माल, खजूर सब दे दिया। अब कोई हो मेरे जैसा कहे मौला जब आपने दुकान खाली कर दी तो अब खोलने का फायदा क्या है। मीसम ने दस्ते अदब बांध के फरमाया, मौला साइल ने खजूर मांगी थी, उससे खजूर मिल गई। मौला मैं भी साइल हूं, मुझे भी कुछ दे दीजिए। क्या तरीका है मांगने का। गरचे वो उस्ताद सिब्त जाफर शहीद का वो जुमला हमेशा पढ़ा करता हूं कि मकतब इश्क में मांगना ऐब है, मकतब इश्क में मांगना ऐब है। मैं भी खामोश हूं, वो भी खामोश हैं, उनको सब है खबर, इसलिए चुप हूं मैं। क्या हुआ, आंख में जो नमी आ गई। अब ये तो शायरी के अंदाज थे। शायरी अपने मकाम पर है और हकीकत के अल्फाज और बुलंदतर होते। मीसम मांग रहे हैं कि मैं साइल हूं। आइए आज मजलिस शहादत में हम सब मिलकर कहें, मौला हम सब साइल हैं। अगर किसी ने खजूर मांगी तो उसे खजूर मिल गई ना, तो रिस्के मादी भी मिल गया, तो मुझे क्या देंगे। इमाम ने फरमाया, मीसम मेरे करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ। इतना करीब बुलाया कि कोई मौला के हाथों को चूमना चाहता हो, कोई मौला के कदमों पर गिरना चाहता हो। इमाम ने मीसम के सीने को अपने सीने से मिला दिया। अल्लाह अकबर। और मिला के फरमाया, जाओ हमने तुम्हें अता कर दिया, इल्म मनाया, इल्म बलाया। मनाया और बलाया दोनों इल्म, मुस्तकबिल के हालात का इल्म, लोगों के हालात का इल्म। मनाया कहते हैं नियतों का इल्म। तो तमाम उलूम मानवी इमाम अलैहिस्सलाम ने बतौर रिज़्क़ मीसम को अता कर दिए। अस्सलामु अलैका या अमीरल मोमिनीन। खुलूस क़ल्ब के साथ कहिए, अस्सलामु अलैका या अमीरल मोमिनीन। और ये ज़ारत अमीनुल्लाह का तीसरा जुमला था आपकी खिदमत में। उसके बाद अशहदु अन्नका। अब यहां जैसे कोई इमाम के रोजे के साथ मुत्तसिल जरी खड़ा होकर गए, अशहदु अन्नका, मैं गवाही देता हूं। अल्लाह अकबर। क्या मंजिलत अता फरमाई है मासूमीन ने। हम जैसे खाक और खाक से बने हुए गुलाम, इब्ने गुलाम कनीस के बेटे, हम कहीं खड़े होकर हम गवाही देते। तुम्हारी गवाही की हैसियत क्या है। बिल्कुल जैसे तशहुद में गवाही ये वहदानियत परवरदिगार, तशहुद में गवाही रिसालत ख़त्मी ये मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे रोज़े मासूम पर ज़ारत मासूम में जुमला अशहदु अन्नका, मैं गवाही देता हूं। किस बात की। क़द जाहदता फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिही व अमिलता बिकिताबिही
व तबाता सुनन नबी यही। और आज की हद तक इन मजालिस का उन्वान मुकम्मल करते हुए कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा पढ़ा हमने, एक हिस्सा तमन्ना का, एक हिस्सा मुनाजात का, एक हिस्सा दुआ का, एक हिस्सा ज़ियारत के कलिमात का, ज़ियारत अमीनुल्लाह। बाज़ ने इसको 2 हिस्सों में किया है कि पहला हिस्सा ज़ियारत का है और एक हिस्सा दुआ और मुनाजात का है। या यूँ बाज़ उलमा ने इसकी वजाहत की कि ज़ियारत अमीनुल्लाह जब चौथे इमाम तालीम फरमा रहे थे उस वक्त ये ख्याल कर रहे थे कोई मौलाए कायनात की कब्र का निशान न समझ ले। जब आपने महसूस किया कि कोई इस तरफ आना चाहता है मुखबिर वगैरह, आपने अचानक ज़ियारत को तब्दील कर दिया दुआ और मुनाजात के अंदर। अब ये जुमला उनके लिए यकीनन बहुत आसान जुमला था कि जिन्होंने बगौर ज़ियारत अमीनुल्लाह को पढ़ा है कि इस ज़ियारत में ज़ियारत तो बहुत मुख्तसर है, बाकी 3 हिस्से मेरे और आपके लिए हैं, एक हिस्सा मौला कायनात के लिए। किस तरह सलाम पेश किया चौथे इमाम ने अपनी जद को, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। मैं गवाही देता हूँ। ये कौन कह रहा है? चौथे इमाम। हम चौथे इमाम के अल्फाज की नकल कर रहे, उनको दोहरा रहे। अशहदु अन्नका जाहता फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही। आपने राह खुदा में जिहाद ऐसा किया कि हक़ जिहाद हो गया। वो अमिल तब किताब ही, और आपने किताब खुदा पर ऐसा अमल किया। आप खुद फरमाते थे लो सुन्नियत लियल विसादतो, अगर मेरे लिए मसनद बिछा दी जाए और मुझसे अहले तौरात सवाल करें किताब तौरात से, अहले ज़बूर सवाल करें ज़बूर से, अहले इंजील सवाल करें इंजील से, और अहले कुरान सवाल करें कुरान से, तो मैं हर सवाल करने वाले को इस किताब खुदा से ऐसा जवाब दूंगा कि हर किताब खुदा पुकार उठेगी जैसा अली ने कहा वही किताब में लिखा हुआ। अल्लाह अकबर। लो सुन्नियत लियल विसादतो, अगर मेरे लिए बिछा दिया जाए मसनद को। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में बात को यहां तक लाते हुए खाली एक जुमला आपके लिए बयान कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने हयात ज़ाहिर का वाक़या कि चंद हबशी ग़ुलाम किसी जनाजे को लेके जा रहे थे। जब अल्लाह के हबीब ने जनाजे को जाते हुए देखा तो उनसे फरमाया कि जनाजे को उतार दो, ज़मीन पर रख दो। आपके साथ मौला कायनात भी थे, ये आगे बढ़े सब लोग, और अल्लाह के रसूल ने आगे बढ़कर उस मैयत के चेहरे से उसके कफन की चादर को हटाया, और जैसे ही इमाम ने उस हबशी मैयत के चेहरे को देखा, बेसाख्ता पुकार उठे, या रसूलल्लाह ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, ये मरने वाला मुझसे मोहब्बत करता था। और ये अपनी ज़ुबान से कहता भी था कि मौला मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। जब अल्लाह के रसूल ने जुमला सुना, इरशाद फरमाया इसको दोबारा से गुस्ल मैयत दिया जाए। दोबारा गुस्ल मैयत दिया गया और जनाजे को फिर बड़ी शान से दोबारा लेकर चले। खुद पैगंबर साथ साथ चले तो लोगों ने आसमान की तरफ से अजीब सदाएं सुनी। लोग हैरान हुए कि या रसूलल्लाह ये आवाज़ें कैसी हैं? कि ये फरिश्तों की जमात है जो इसके जनाजे की मुशायत के लिए आ रही, फरिश्तों की जमात। और आप खुद इस मैयत को ले जाकर कब्रिस्तान तक पहुंचा कर आए। फिर फरमाया खुदा इसे जन्नत में जो नेमतें अता करेगा वो सब के सब नेमतें या अली आपकी मोहब्बत की बिना पर होंगी।
अल्लाह अकबर। ये बात मैं याद दिला दूँ, सलाम मुकम्मल हो रहा है ज़ारत अमीनुल्लाह। हो सकता है आपने कल भी पढ़ी हो तो आज भी पढ़ लीजिएगा ज़ारत अमीनुल्लाह। कोशिश करें जब भी मौला को याद करें तो ये सलाम ज़रूर पढ़ लिया करो। अपनी तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, अपने अहलो अयाल की तरफ से, अपने मरूमीन की तरफ से जो जो आपसे इल्तमा से दुआ करते हैं, ये मौला की खिदमत में सलाम का बेहतरीन तरीक़ा है जो मासूम ने अता किया। ज़ारत अमीनुल्लाह और इमाम की बारगाह में एक मिसाल ये, एक मिसाल और बात तमाम कर लेता हूँ। जब मेरा मौला मस्जिद कूफा में था, एक शामी शख्स ने आकर, जिसे भेजा हकीम शाम ने, अपना लिबादा तब्दील किया हुआ है मौला के चाहने वालों के अंदाज में, और आया सवाल लेकर अमीर शाम की तरफ से है। इमाम के असहाब के दरमियान बैठ गया, मौका मिलते सलाम किया, कहता है कि मैं आपका चाहने वाला हूं, मैं आपके इलाके में रहता हूं, कुछ सवाल लेकर आया हूं। इमाम ने बगौर शामी को देख के फरमाया, अगर तुमने जो कहा है कि मैं आपके इलाके में रहता हूं, आपका चाहने वाला हूं, तो अगर तुमने कभी हमें सलाम किया होता तो हम तुम्हें ज़रूर पहचान लेते। अल्लाह अकबर। अगर तुमने कभी हमें सलाम किया होता हम तो ज़रूर पहचान लेते। तुम गलत कहते हो, सच बात कहो, छुपाते क्यों हो? भैया मौला ये पूरा पैगाम देना चाहते हैं कि जो मुझे एक मरतबा सलाम कर लेता मैं उसे पहचान लेता हूँ। खुलूस कल्ब के साथ कभी अपने मौला को सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। मौला फरमाते जो मुझे सलाम एक मरतबा करता है मैं उसे भूलता नहीं। अल्लाह अकबर। मौला तो उसको नहीं भूलते जो मौला की खातिर दूर से मौला के रोजे का एहतराम कर ले, तो अपने चाहने वालों को इमाम कैसे भूल जाएंगे। इसलिए फिर आपसे इल्तमास करता हूं कि अपने मामूलात में शामिल इस ज़ारत अमीनुल्लाह। वाह मुसीबत रोज़े शहादत। अब जो रात आई है ये पहली रात है जो मेरे मौला के घर में मातम की रात है। मौला रुखसत हो चुके, जनाजा उठ चुका, हाय मुसीबत। अब शहजादियां अपने बाप के बगैर हैं, अब्बास यतीम हो चुके, हसनैन यतीम हो चुके। अरे वो मेहराब खामोश हो गई जहाँ इमाम मुनाजात कर रहे, वो कूफे का बैतुल शरफ खाली हो गया, यतीमों का चाहने वाला न रहा, रोने वालों। बस एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, वाह मुसीबता, वाह मोहम्मदा। याद रखें मौला कायनात के मसाइब बहुत ज़्यादा हैं, बस एक जुमला मौला के मसाइब में पढ़ूंगा, इतना हाथ जोड़ के पढ़ूंगा। मौला मौला आपके सर पे तलवार भी मारी गई, उस तलवार में जहर भी पैवस्ता किया गया था। हाय मेरा मौला, दुनिया से इस आलम में रुखसत हुआ कि दोनों शहादतें आपके हिस्से में थी। सर पे इतना गहरा जख्म था। कहते हैं मौला से मुलाकात करने वालों में ज़रबत के बाद जो नाम लिखा है वो असबख बिन नुबाता। असबख कहते हैं जब मौला ने फरमाया था अपने बड़े फर्जंद से, बेटा मेरे साथियों से कहिए वापस चले जाए, मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ इनके कानों तक न पहुँचे। कहते हैं असबख सब चले गए और मैं दरवाजे के बाहर रह गया। मौला हसन किसी काम से बाहर आए, देखा कि सब जा चुके, ये एक असबख बैठा हुआ। आके फरमाया असबख तुमने सुना नहीं था? मौला ने सबके लिए फरमाया था। असबख कहते हैं हाथ जोड़ के, मौला मैंने आपकी नाफरमानी नहीं की है मौला, जिनके कदमों ने साथ दिया वो चले गए मौला, मुझसे चला नहीं जाता मौला, मुझे एक मर्तबा मेरे आका की ज़ियारत करवा दीजिए। ये वो पहला शख्स है जिसने ज़रबत के बाद मौला की ज़ियारत की है। मौला हसन फरमाते हैं अच्छा मैं बाबा से अपने सरदार से पूछता हूँ
अगर इजाज़त मिलेगी तो मैं अंदर बुला लेता हूँ। मौला हसन घर में आए, इजाज़त ली बाबा से, इंतज़ाम पर्दे का किया गया, बेटियां बाप से जुदा हुई। असबक कहते हैं जब मैं घर में दाखिल हुआ मैंने मौला के चेहरे को देखा, मौला का चेहरा इतना जर्द हो चुका था, समझ में नहीं आता था कि जो पेशानी पर पट्टी बांधी गई है वो ज्यादा जर्द है या मौला का चेहरा ज्यादा जर्द है। मौला के सर के खून को बेटियों ने धो दिया था। मैंने मौला को देखा, ज़ारो कतार रोने लगा। मौला ने पूछा असबक रोता क्यों है? मैंने कहा मौला आपको तो हमसे बेहतर साथी वहां मिल जाएंगे, हमें आप जैसा मौला कहाँ मिलेगा। असबक ज़ारो कतार रोते थे। इमाम असबक को देख के फरमाते थे असबक परेशान ना होना, वाह मुसीबत। मौला की ज़ियारत करने वालों में असबक वो शख्स बने जो ज़रूरत के बाद आए। बस मैं एक जुमला कहूँगा, बेटियों ने बाप के सर के खून को धो लिया, अरे पट्टी बांध दी गई, हाय हुसैन, अरे सर कट के नो के सिना पे सवार हो गया। बेटी बाप के सर को गोद में न ले सकी, वाह मुसीबत। आखिरी जुमला रोने वालों, ये तो बात थी मुलाकात करने वालों की, बेटियों के अंदाज की बात थी, जो कि आज रोज़े शहादत है। अब आज जो रात आई ये पहली रात है जो बेटियां बाप के बगैर गुजारेंगी। घर में उम्मुल बनीन होंगी मगर वारिस ना होंगे, अब्बास होंगे मगर अब्बास के बाबा ना होंगे। वाह मुसीबत। इतनी तो बात कहूंगा बीबियों, शाम आई है यतीमों की मगर कुछ चादर लूटने वाला तो नहीं आया, कोई तमाचे मारने वाला तो नहीं आया। हाय करबला, खैमे जले, चादरें लूटी गई। 4 साल की बच्ची को इतना मारा गया कि रो के कहती थी शिमर मुझे न मार, मैं बाबा का नाम भी नहीं लूंगी। अल्लाह वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। परवरदिगार बहक़ अमीरुल मोमिनीन, परवरदिगार बहक़ अमीरुल मोमिनीन, बहक़ अमीरुल मोमिनीन हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। हमें रिज़्क़ मादी और मानवी दोनों इमाम अलैहिस्सलाम के वसीले से इतना इनायत फरमा कि जिस्म में ताकत हो इबादत के लिए, रूह में ताकत हो मार्फत के लिए। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमसे राज़ी खुशनूद फरमा। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते करम और शफ़क़त हम सबको नसीब फरमा। मौला कायनात के कातिलों से इंतकाम लिया जाएगा जब इमाम आएंगे। परवरदिगार मुंतकिम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बजाए मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।